Thank you very much, sir. We feel overjoyed to have Professor Dr. Muhammad Ilyas Khan, Associate Professor and Chairperson Department of Education, Hazara University Mansehra. Please join me in welcoming Professor Dr. Ilyas Khan on stage. His education includes PhD education, University of Leicester, UK, MA, University of Peshawar, Pakistan, MAd, University of Peshawar, Pakistan, Associate Professor and Chairperson at the Department of Education, Hazara University Mansehra. Successfully supervised 7 PhD and more than 30 MPhil research theses. Review for several national and international research journals. More than 25 years of teaching experience. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Respectable Fayyaz Ahmed Sahab, Director, Jinnah Colleges, Dr. Naseer Ahmed Sahab, Aarif Gohar Sahab, Ms. Safiya Janis, Mr. Fayyaz Ahmed Sahab, Mr. Hamdan, and Mr. Umar. Besides dear educationists, teachers of Jinnah College, and most importantly, our students of Jinnah College, Assalamu alaikum. I'm very, very thankful to Fayyaz Sahab for inviting me to this very august gathering of educationists, intellectuals, and budding educationists who are our students. I was especially very happy because the theme of today's gathering is, I think, something that is to reflect on the quality of education. Education, we talk a lot about education, but especially people who are thinking the what and why of education, that is something that is very, very important. And I am someone, as an educationist, who is very interested in the quality of education. We see that in terms of quantity or numbers, there is a phenomenal increase in education in Pakistan, but what is needed now is to actually start thinking about education in terms of its quality. So what we are producing at the end of the day, that is something that we need to think about. And so as a result, when I was coming here, when Fayyaz Sahab asked me to come here, the thing that I was thinking about was actually the outcomes of education. So I will begin with an Urdu. किसी ने उर्दू में ये कॉल है, और वो ये है कि ये ना देखें कि ज़िंदगी में साल कितने हैं, ये देखें कि सालों में ज़िंदगी कितनी है. And अगर मैं इसको एकेडमिक साल बनाऊं तो ये कोड कुछ इस तरह से बनेगा कि ये ना देखे कि स्कूल में कितने साल गुजारे या कॉलेज में, ये देखें कि वो जो साल आपने गुजारे हैं उनके एंड पे आप क्या हैं, who are you, what concrete change is there in you as a person. That is something that I was thinking about. And then ये जो Jinnah College का लोगो है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एजुकेशन दैट वर्क्स, वो तालीम जो आप प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में काम आता है. तो कई बच्चे, मेरा ख्याल है शायद आप कोशिश करें कि मेरा यहाँ पे मकसद बेसिकली इट्स नॉट अ लेक्चर बट टू आस्क यू टू थिंक अबाउट why are you here in the school. Similarly, I would ask teachers as well to do exactly the same. So
this idea of outcome-based education is an important one, and मैं थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा इसको introduce कराना चाहता हूँ. How is outcome-based actually education related to the concept of quality education? Do I have this? All right. Yeah, right on the top of it, what there is that quote. उसको मैंने roughly translate करने की कोशिश की है. So जो students हैं, especially जो senior schools पहुँचे हैं या जो college पहुँचे हैं, उनके लिए थोड़ी सी एक rough किस्म के analysis है. मैंने ये देखा कि when you get through your SSC या class 10, तो आपने तकरीबन 9,000 स्कूल में 9,000 hours आपने गुजारे हैं. And because around 100 hours in a month, याद रखिए ये rough estimate है, exact नहीं है. And so 900 hours in a year, and so 9,000 in 10 years. अगर आप यूनिवर्सिटी, अगर आपने 12वीं भी किया हुआ है, then it's 11,000 in 12 years. About 1 million rupees आपके पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने आपके ऊपर लगाए हैं. और इसके अलावा big parental expectations हैं. And so what at the end of all of this investment, इस investment के end पे what is it that you are now, that you have done? So that's something that I was thinking about. And so we need to think about, why are we in the school? Why are our students in the school? Why have we developed all of this infrastructure inside the school? So there are certain goals, and then there are certain means, and then there are ends and outcomes. So generally we begin with goals. We have certain goals, and so there is a process or means of achieving those goals, and then we have outcomes. The concept of outcome-based education basically begins with the ultimate criteria whether an education is basically a good quality education or a bad quality education is on that what are actually the outcomes at the end of the process of education. Outcomes क्या निकलते हैं? So पहली बात यह है कि every school needs to have clear right in the very beginning कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये स्कूल है या एक सिलेबस है या एक करिकुलम है. At the very beginning we need to have outcomes in our mind. ये 10 years के outcomes भी होते हैं, फिर ये साल के outcomes भी होते हैं, फिर ये month के भी होते हैं या maybe semester के, and then we have outcomes in our mind before every class, जो कि आप कहें कि बिल्कुल बिगिनिंग के जो आउटकम्स हैं वो टीचर के जहन में होने चाहिए. मैं इस क्लास में जा रहा हूँ, मेरे भी अभी कुछ आउटकम्स हैं यहाँ पे. जब मैं आया हूँ तो मैं जब ये 10-15 मिनट के बाद उधर बैठूँगा, what change has actually occurred there in the hall? That is something that the teacher should focus on. And so इसमें दो चीज़ें, ये जो नीचे वाला है, what and whether के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है, और when and how के ऊपर हमारा फोकस ज़रा फिर भी है, but like the main focus should be on the what and whether. What का मतलब ये है कि what have students learned. Whether का ये है क्या बच्चे जो हम चाहते हैं वो उन्होंने सीखा है कि नहीं. The when and how are flexible. कब सीखा है और कैसे सीखा है, इस पे फोकस कम होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली स्कूलों और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें when and how के ऊपर फोकस ज़्यादा है.
और व्हाट एंड वेदर के ऊपर कम है। तो वो टाइट स्केड्यूल्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। सो इसके कुछ पायनियर्स हैं, इनको आप बाद में डिटेल में इनके काम, स्पेशली जो हमारे टीचर्स हैं वो देख सकते हैं। अब हम आते हैं द वाई ऑफ इट पे। Why is it important that we should have outcome-based education? पहली बात यह है कि अगर आपके जहन में एजुकेशन के आउटकम्स क्लियर है right from the very beginning, so that will make the whole educational process और आपके अपने जहन जो as a teacher है that will be very clear. So it brings in clarity regarding the educational outcome. Second, premium on ends rather than means. हमारा ultimate goal क्या है, उसकी तरफ जाने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन हमारा end जो है वो, so there is flexibility in terms of इसकी implementation के लिए. Then rationalization of the educational process. क्यों का जवाब, हम क्यों स्कूलों में हैं, रेशनलाइजेशन होती है जब हम ये वाई वाला क्वेश्चन करते हैं. देन फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रोग्रेस. फ्लेक्सिबिलिटी, हम अगेन जैसे मैंने आपको कहा टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एंड्स हमारे वही है, उस तक हमने पहुंचना है. मैं चाक और बोर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकता हूँ, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अल्टीमेटली व्हाट स्टूडेंट्स लर्न. सो दैट्स समथिंग. क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. व्हाट नेक्स्ट? इट हेल्प्स अस इन थिंकिंग क्रिटिकली. कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है जिसमें मैंने चलना है, रोज़ाना वही लेसन प्लान बना के डिलीवर करना है एंड दैट्स इट. No, it gives the teacher the power to be creative and to be imaginative, and not just the teacher, but also the student. Next one, democratization of the educational process. आप चूंकि टीचर को पावर देते हैं और फिर टीचर स्टूडेंट को देता है, तो democratization of the educational process हो जाती है. Then inclusion, again very similar idea. More autonomy for students, teachers and educational institutions. और lastly, research ये शो करता है कि अगर आप outcome based education देते हैं, अगर आपकी outcome शुरू में clear है, उन्हीं के लाइट में आप educational process develop करते हैं, तो आपका result एक better result आता है. Better academic achievement students के part पे होती है. अब हम इसके हाउ पे जाते हैं. दी हाउ ऑफ इट. आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन कैसे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें. मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई इशू है. इज इट ओके? ऑलराइट. ये प्रोसेस है. पहले हमने आउटकम्स डिफाइन करने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक आउटकम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम 10वीं मतलब किसी भी सिलेबस के एंड पे उनके अंदर ऑनेस्टी आ जाए. ऑनेस्टी. अब क्या हमारी सोसाइटी में वो जो ऑनेस्टी का कल्चर है, इज दैट एक्चुअली इन प्लेस? क्या ऐसा है हमारे बच्चे उस क्लास की या उस सिलेबस के एंड पे उनके अंदर प्रैक्टिकली क्या वो ऑनेस्टी का मुजाहरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिजाइनिंग कैरिकुलम, या चले ऑनेस्टी एक मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है. लेट्स से कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो क्या एट द एंड ऑफ द सेशन या द क्लास या द सेमेस्टर या द ईयर, क्या वो प्रैक्टिकली उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या वो रॉट लर्निंग तो नहीं कर रहा है? वो डिफरेंशिएटेड सिचुएशन में यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन डिजाइनिंग द करिकुलम इन द लाइट ऑफ आउटकम्स.
then delivering instruction, determining advancement and documenting results and outcome. तो ये जनरल एक प्रोसेस है, ये मेनली टीचर्स और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इस प्रोसेस को डील कर सकते हैं। हाउ के अंदर आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन कैसे करें? पहली बात, क्लैरिटी ऑफ फोकस। You need to have the focus कि भाई this is what I want my children or my students to do towards the end of it. So what you do is the focus, the clarity of focus. Second, expanded opportunities. जैसे मैंने कहा शुरू में कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटीज़ ये होती है कि अगर एक बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता तो आप दूसरी तरीके से कराएं। अगर लेट्स से दो बच्चे हैं और जाहिर बात है क्लास के अंदर बच्चों की डिफरेंट कैटेगरीज होती है। अगर एक बच्चा वो काम जो है वो एक वीक में सीखता है, दूसरा बच्चा 2 वीक्स में सीखता है, so there should be some level of flexibility in that. Expanded opportunities in terms of teaching style. यहाँ तक कि मे बी वो एक टीचर से नहीं सीख सकता तो you can bring in another teacher. एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप बच्चे को एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं वो चीज़ सीखने के लिए जो आप सिखाना चाहते हैं। देन हाई एक्सपेक्टेशंस, ये इसकी बेसिक फ़िलासफ़ी है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बड़ी फ़िलासफ़ी ये है कि आप हर एक बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप कहते हैं कि हर एक बच्चा इधर तक पहुंच सकता है, यहाँ तक पहुंच सकता है। सिर्फ ये है कि उसको आपने अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिफरेंट देनी है, ज़्यादा टाइम देना है, डिफरेंट तरीके से पढ़ाना है। सो दैट इज़ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द आउटकम बेस्ड एजुकेशन कि आप हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और लास्ट इसका है डिज़ाइन डाउन। डिज़ाइन डाउन का मतलब यह है कि जनरली हम ये करते हैं कि किताब से शुरू करते हैं या किसी करिकुलम से शुरू करते हैं। डिज़ाइन डाउन का मतलब यह है कि सबसे पहले आपने आउटकम से शुरू करना है और आउटकम से नीचे आना है। मैंने इस मंजिल तक पहुंचना है, इस तक पहुंचने का रास्ता फिर बाद में बनाना है और रास्ते एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो दैट्स कॉल्ड डिज़ाइन डाउन। मैं इस वक्त देख रहा हूँ ये जो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं या हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, ये कोई क्लासरूम तो नहीं है ना? व्हाट इज़ इट? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यानी हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस तरफ आते हैं। देन these are some further, if someone of you want to read more about it, they can do this. So to end this, what I would say in the end is that education के ultimate outcome से हमें begin करना है। क्वालिटी सर्कल्स का जो कॉन्सेप्ट है या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि आप क्वालिटी को उस वक्त अप कर सकते हैं एजुकेशन का when you are very clear about the educational outcomes कि आप चाहते क्या हैं, ultimately आप क्या चाहते हैं। So that was like a brief introduction to it। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मज़ीद हम जा सकते हैं, but this was a brief introduction। तो मैं थोड़ा सा टीचर्स को कहना चाहूँगा कि वो जहन में रखें कि जिस वो क्लास में जा रहे हैं तो ये जहन में रखें कि इस क्लास के एंड पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे कर सकेंगे जो इस क्लास से पहले नहीं कर सकते थे। ये इट्स वेरी प्रैक्टिकल। सिमिलरली जो बच्चे हैं आपके लिए भी ये है कि आप रोज़ाना जहन में ये लेकर आए स्कूल में कि जब मैं स्कूल आया हूँ तो मैं किस लेवल पे था और मैं स्कूल से जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो what is new that I can do on a practical level. That is something that will tell us about the outcome of education. And the same will be for educational leaders जो स्कूल लीडर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको भी ये सोचना है कि जो हमारे बच्चे साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद इस सिस्टम से निकलते हैं
what is it that they can do जो कि 10 साल पहले नहीं कर सकते थे। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लास्ट एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बेहतरीन मिसाल ये मैं बोलता हूँ, ये जो बदकिस्मती जो मैकेनिक होते हैं, मैकेनिकों के बाद जब बच्चे जाते हैं तो उनको कुछ नहीं आता। मैकेनिक उनको इस तरह बोर्ड के सामने नहीं बिठाते। मैकेनिक क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, और वो अक्सर बेतालीम होते हैं, बट हमारे डेफिनेशन में होते हैं। वो प्रैक्टिकली उनको दिखाते हैं, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। एक साल बाद छोटा बच्चा, वो जुल्म है अगरचे वो नहीं होना चाहिए, उनको एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे वो इन्वायरमेंट देना चाहिए। एक साल बाद द बच्चा हैज बिकम इंडिपेंडेंट। वो जो मैकेनिक है, उस्ताद जो होता है, उसने बगैर सोचे आउटकम बेस्ड एजुकेशन उसको दिए। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। ये नहीं है कि बगैर सोचे सब जो चीज़ें याद कर रहे हैं, पेपर पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आई मस्ट अगेन अप्रिशिएट आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज जिन्ना कॉलेज ऑन सच अपॉर्चुनिटीज कि जहाँ पे हम रिफ्लेक्ट कर सकें, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट आपस में बैठ सकें, जहाँ पे वो कोई ऐसे काम कर सके जो रूटीन से बाहर के हो। That is something that I think will go a long way towards quality education, towards total quality management in education, and towards outcome-based education. So thank you very much for your time.